Hello everyone, welcome back to Where We Are. Today we have a very young entrepreneur and we will learn about her challenges and her journey. So we welcome Anahat Kaur Thukral. Thank you so much, Megha, for inviting. I hope this conversation is a fruitful one. Absolutely. So, how are you today? I am doing absolutely fine. So what made you start your business instead of traditional career? So I come from a business family. I've always seen my dad, my uncle being involved in their businesses completely. So I always kind of wanted to start something of my own. Just path नहीं मिल रहा था. But sometimes कहते हैं ना, things happen. The universe connects you somewhere, and similarly, the same thing happened with me. I was in college then, grad चल रहा था मेरा, and we had to get our t-shirts or society t-shirts made, and I got it made. And then उसके बाद one thing led to another. Then I started cold calling, I received more orders, started making money. That was my motivation. And eventually, then we set up a factory. So here we are. That's nice. Looking back at your journey, what was your biggest challenge of your career? The biggest challenge, I think अभी भी challenges तो चल ही रहे हैं. सब कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल smooth जा रहे हैं. सब कुछ है, struggling चल ही रही है. But the thing is, if I say the biggest challenge, I think the biggest challenge was being a girl in all this. I know कि हम 21st century में है, कहते हैं. मैं भी तब जब बुक्स पढ़ते थे यही बातें सारी मैं भी सोचती थी कि नहीं यार लड़की है तो क्या हो गया, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम ह्यूमन बीइंग. किसी के पास जाके कोई बात करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जब आप काम में घुसते हो ना, जब आप लेबर से इंटरेक्ट करते हो, जब आपके कंपेटिटर्स होते हैं, तो वो नहीं देखते कि आप एक इंसान हो, एक नया बच्चा कुछ अपना काम करने का शुरू कर रहे. नहीं, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट यू डाउन. एंड समवेयर I have faced those challenges. I was living in Delhi, and Delhi is not per se a very open-minded society there. So I think that was the biggest challenge, and वो तो अभी तक चल रहा है. But somehow क्योंकि काम इतना बड़ा हो गया है, तो वो challenge. जो आपके बिजनेस का जो माइंडसेट है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया था, किस तरह से हुआ? Give full credit to my dad. Okay. Yeah, so he was there in and out. मेरे को रात को कभी फिल्मिस्तान जैसे एरिया में या चांदनी चौक जैसे एरिया में जाना पड़ता था, तो he was the one who accompanied me there. So I think my biggest supporter, my biggest idol, and I think the person who has helped me shape my mindset, that's my dad. And one thing that I would like to point out here is कि बहुत बच्चे होते हैं मेरी एज से, छोटे भी बड़े भी, मेरे जितने भी. आई एम 23 बाय द वे. एंड उनकी बिजनेस फैमिलीज होती है. दे टेक व्हाट देयर फैमिलीज आर ट्राइंग टू गिव फॉर ग्रांटेड. तो उस चीज को ना फॉर ग्रांटेड का भी मत लेना. इंस्टेड यूटिलाइज दैट टू द मैक्सिमम. एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम. जो नॉलेज मेरे डैड को 40-45 ईयर्स के होके आई है, he's trying to give me that, and if I'm executing that, if I am implying that into my business, to imagine the growth that's going to happen. Right. That is actually a good concept that you are speaking about. So when you started the business, what resources did you already had and what you built from scratch? Very funny. I had 2 lakh rupees, और वो 2 लाख कहाँ से थे? जो शगन वाले नहीं मिलते हैं भाई, हम जाते हैं किसी बड़े ने दे दिया, वो सेविंग्स थी वो मेरी. एंड उससे मैंने शुरू किया था. एंड नाउ तो वी हैव बिल्ड एन एम्पायर. तो वो तो चल ही रहा है. So how did that idea click कि मेरे को यही मैन्युफैक्चरिंग करना है? कोई और भी तो आइडिया हो सकता था. बिल्कुल. सो आई चोज व्हाट्स इजीली एक्सेसिबल फॉर मी, व्हाट्स इजी फॉर मी टू डू, जिसके अंदर मैं अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी दे सकती हूँ. So completely background thing. My dad has a textile mill. Okay. So I knew that if I further, start manufacturing clothes, मेरे को पता है कि जो मेरा कपड़ा आएगा
वो टॉप नॉच होएगा, मेरे क्लाइंट को वो चीज जो है टॉप नॉच मिलेगी. नो वन कैन गिव दैट बेटर देन मी एट अ बेटर प्राइस. सो दैट Okay, so what was your first product or service that you offered, and what was the reaction customers ka? The customer was very happy, so we got an order. Our first order was from IIT Roorkee, and those guys ordered some 200 hoodies from us. हमने बना के दिए. They were very happy with the products. Products अच्छे थे, and there's a very quick funny thing that I would like to highlight here. So in my grad days now, I used to get 6,000 rupees per month for my allowances, for my expenses. तो उसमें ही सारा करते थे. लास्ट में बैंक में कितने बचते थे? 2-2,500 बचते थे. 1,500 कभी भी वो भी नहीं बचता था. तो मैंने IIT रुड़की को ऑर्डर दिया. मैंने कहा आप एडवांस डालो. उन्होंने कुछ 1,80,000 डाले. मेघा, आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड कि भाई मेरे अकाउंट में 1,80,000 की वो जो फिगर है वो है. I called up my mom, sent her the screenshot. देखो मेरे अकाउंट में 1,80,000 है. तो उसके बाद आई थिंक मेरे लिए व्हाट हैज वर्क फॉर मी इज पैसे से ही पैसे कमाने की मोटिवेशन मिलती है. आज भी ऐसा होता है. वी completed a very big order last year and saved a decent amount. उससे मोटिवेशन आती है और काम करने की. एंड एक गलती जो हम अक्सर कर जाते हैं, मैंने भी कही है, और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई यार अपना अगर बिजनेस अपनी जीत जान उस बिजनेस में लगा रहा है तो वो गलती करे. तो व्हेन यू स्मॉल, तो आपको ऑर्डर्स आते हैं 1 पीस के, 2 पीस के, 10 पीस के. आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, उस ऑर्डर को अच्छे से करके देते हो, उसकी पेमेंट लेते हो, एवरीथिंग वेरी स्मूथ. एज यू स्टार्ट टू ग्रो, वो ऑर्डर्स हो जाते हैं 100 पीस, 200 पीस, 400 पीस. तो आप उनको इंटरेस्ट लेके करते हो. साथ में आपको 5 पीस, 10 पीस, 2 पीस के भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं. आपका जो ध्यान होता है ना, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है बड़े ऑर्डर्स पे. एंड दिस हैज हैपेंड विद मी. मेरे को एक बड़ा ऑर्डर आया जिसमें कुछ लाखों रुपए बच गए. उसके बाद जिस ऑर्डर में मुझे 200 रुपए बच रहे हैं, या जिस ऑर्डर में 10,000 बच रहे हैं, या जिस ऑर्डर में 5,000 बच रहे हैं, वो मेरे लिए ना उतनी वैल्यू नहीं होल्ड कर रहे. तो जो आपका रील वायरल हुआ था, was that some trending audio, music? What was that content exactly about? I think that was something that people would love to see. So I manufactured hoodies for my own society, and we had won. So I used to work in Enactus, and we won something, and then we were invited to Puerto Rico for our national competition. So we went there, and I just posted a very simple reel. POV, being a college student and going to Puerto Rico to represent your country for that event, for that topic per se. So this reel, and I think a lot of people loved watching it, or people liked the reel. People got motivated by it. So I don't think that was more on a trending audio or something, but that was something that people would love to see. Okay. And if you get a chance to go back and start your business from scratch, what would you do differently this time? Interesting question. I think I would skip my MBA for sure. Okay. So I was 19 when I started the business, and then for 2 years, like I was 20, and for the next 2 years, I came here to Pune to complete my MBA. My MBA, and that is where I think I lost a certain track. Managing your MBA and your work cannot go hand in hand. Right. So I think I would have skipped my MBA, and this is the time where I realized why people drop out of their colleges. True. How did you manage your academics and business then? Everything was managed simultaneously. बहुत प्रॉब्लम हुई है. I think एक भी दिन अगर मैं काम नहीं करती हूँ ना मेगा, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस एक दिन पता नहीं कितने ऑर्डर आना है, पता नहीं किसका फोन आना है ना, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. बट समहाउ मैनेजिंग इट साइड बाय साइड, एंड जाके बैक टू वर्क फुल टाइम. Nice. तो अब आप MBA तो कर रहे हो, साथ में तो आपके प्रोफेसर्स और आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? आर दे सपोर्टिव?
See, I'm pursuing my MBA in Innovation and Entrepreneurship, and people there tend to, support if you have businesses. So through my college, I've been connected to really good people. In fact, I got Reliance as a client on board because of this college. Then I've got to, establish my business in front of big people. So that is where I'm still connected to one of the, so we have a competition, mini Shark Tank kind of competition, and there I got connected with investors, and I'm still connected with the investors. So the opportunities जो थी ना वो बहुत ज़्यादा खुल गई by this. You got networks. In your opinion, what is the biggest difference between someone who wants to start a business and someone who actually succeeds? That's a really interesting question. I'm very excited to answer this. I think the biggest difference between the two is your execution. A person who wants to start their own business keeps wanting, keeps planning, keeps on procrastinating, and the person who's actually succeeding, उसने कुछ plan नहीं करा, उसने बस शुरू कर दिया, and he's planning and figuring things out on the way. I started my own website. वो वेबसाइट बहुत बेकार ढूंढेगा, मतलब मैं खुद उस वेबसाइट से कभी कुछ सामान ना खरीदूं, बट मैंने वो वेबसाइट बना दी कि यार वेबसाइट होए, उसके बाद मैंने उसमें चेंजेस करने शुरू करे, साथ साथ मैंने ऑर्डर्स लेके आना शुरू करा. नथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर प्लान. ये तो आप अपनी लाइफ लेसन ले लो, अपनी लाइफ से लेसन ले लो. नथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर प्लान. तो जस्ट स्टार्ट, जस्ट डू इट. राइट मतलब अभी जो दीपिंदर गोयल का पॉडकास्ट था अबाउट जोमैटो एंड इटर्नल, उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि दे डोंट प्लान फॉर द फ्यूचर, दे जस्ट गो विद द फ्लो. Go with the flow. I have learned this from my life, and I would want everyone to do the same. Just execute as soon as possible. Great. You have to list top qualities that entrepreneurs should develop in their journeys. हाँ, number one, your communication. I believe अगर मैं इतना आगे पहुंची हूँ तो सिर्फ और सिर्फ communication की वजह से ही पहुंची हूँ. I think आप जितना मर्जी बोल लो marketing, आप बोल लो finance, आप बोल लो HR, the most important thing that a company needs is sales, and your sales needs to be strong as anything. So I think the first quality that an entrepreneur should have is an entrepreneur. कंजे को कंघी बेचने वाला हिसाब होना चाहिए. Right. नहीं नीड है और आप बेचोगे. Number two, I think you should have good leadership skills. You're building a company, you're the owner, so you should have that in you. कि सामने अगर कोई बहुत बड़ा आदमी भी खड़ा है ना, आपकी स्किल से वो इम्प्रेस होके आपको वो काम देना चाहे. एक जगह एक टॉप कंपनी है जो एसिंग इन देयर वर्क, एक जगह आप हो, सामने वाला बंदा उस टॉप कंपनी को क्यों नहीं देगा और क्यों आपको देगा? आप में वो जज्बा, वो पैशन, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने आगे अपनी टीम भी संभालनी है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing for a revenue generating startup is to start delegating their work as soon as possible. If you don't delegate, you'll be stuck where you are forever. So I think when you have to hire people, leadership quality honi chahiye. And number three, you should be humble as anything. कभी भी पैसे को सर पर चढ़ने देना. Just be humble, just keep working, be consistent. Consistency बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Right. So I think those are my 3 top qualities. Okay, so when your business started growing rapidly, what were the new challenges that developed with time? Okay, number one challenge that was developed was I started getting a lot of leads, but I didn't have people to cater to them. Okay. तो मेरा फोन बज रहा है, दिन भर मेरे को 5-7 कॉल्स आ रहे हैं. पिछले भी मेरे को 5-7 पिछले दिन के 5-7 कॉल्स पड़े हैं, उनके साथ फॉलो अप करना. बिकॉज इन माई फील्ड आई नो कि मैं प्रोडक्ट दे दूंगी, लेकिन क्लाइंट एक बार करके ऑर्डर नहीं प्लेस करता है. वी हैव टू फॉलो अप. क्या डिजाइन है, क्या कलर है, क्या पैटर्न है, 100 चीजें होती हैं. तो आई डिडंट हैव पीपल टू डू दैट, एंड फिर वो चीज इवेंचुअली हमने करी क्लोज. नंबर 2, आई थिंक योर बिजनेस शुड कीप इवॉल्विंग विद टाइम. तो जब हमने शुरू किया था तब शायद टी शर्ट्स की डिमांड थी अच्छी खासी, हमने उसी से शुरू किया था. बट देन वी एडेड ऑन मोर प्रोडक्ट्स,
देन टी शर्ट्स में भी हम अंदर घुसे तो और पता चला चीज़ें कि यार नहीं, टी शर्ट की एक पैटर्न अलग होना चाहिए, पहन के फील आए कि यार आपने कोई अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट पहनी है. देन we set up a new factory. So we set up a factory in Ambala, which is run by all women, which is the labor in that, the workforce that we have there, that is all women. So we trained them. अम्बाला में एक छोटा सा गाँव था, वहाँ पर लेडीज जो सूट सलवार ऑल्टरेशन करती है ना, उसका काम हमने उनको पूछा कि आप काम करना चाहते हो, क्या विलिंग टू, घर के पास है एवरीथिंग. वी सेट अप अ फैक्ट्री इन अम्बाला. हमने मशीनरी सारी सेटअप करी, 3 महीने सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी कि टी शर्ट्स कैसे बनानी है. एंड आज वो दिन की 200 पीस निकाल के फेंकते per person. Nice. तो उनकी जो स्पीड है, उनकी क्वालिटी है वो, एंड वी डिड इट इन एन आउटस्कर्टेड एरिया. तो हमें पता है कि वहां पर हमारे कंपेटिटर्स है वो भी नहीं पहुंच. सो इसका मतलब जब हम बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, इज दैट इम्पोर्टेंट कि जो टीम मेंबर्स हम हायर कर रहे हैं दे शुड बी स्किल्ड इनफ? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ये गलतियां जो करी है मैं आपको वही बता सकती हूँ. मे बी इट हेल्प्स आवर ऑडियंस टू. तो मैंने स्टार्ट किया था बाय हायरिंग इंटर्न्स, एंड लकीली मेरे को अच्छे इंटर्न्स मिल गए, एंड दे वर ऑल्सो वेरी स्किल्ड. बट अ लॉट ऑफ माई टाइम वेंट इन ट्रेनिंग देम. तब मैं भी छोटी थी, आई थिंक आई वाज 20-21 व्हेन आई हायर्ड इंटर्न्स. तो तब वो मैनेज हो गया. बट इफ यू आर स्केलिंग योर बिजनेस, do not hesitate from taking or hiring experienced employees, because the value that they bring to your company, I think वो जो आप उनको 25,000 या 30,000 दे रहे हो ना महीने के, it be worth it. True. They'll get you 3 times of 25,000. Yes. मतलब आप यार एक बंदा देखो, आप 25,000 का रख रहे हो पर मंथ, एक आप 15,000 का रख रहे हो, फर्क तो है दोनों. एंड दैट इज वेयर, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग. ऐसा नहीं है कि आप 50 लोग एक साथ हायर कर रहे हो, अपनी टीम पूरी बना रहे हो. यू आर ऑल्सो बिल्डिंग. सो हायर 1 or 2 people or 3 people. That's how startups start. You know, a company starts. That is how work is done. But make sure that you leave no stone unturned in finding the right employee for you, because the right first employee is very important. So what is that one strategy that helped you grow rapidly? That helped me grow rapidly in my business or in businesses in general? In your what? I think in my business, the biggest strategy that helped me was maintaining good relationships with my clients. So in my industry, we get repeat customers. Right. तो यूजुअली क्या होता है कि आप अपने, कोई भी बंदा सपोज अगर क्रोशे की कोई आइटम बेच रहा है या कोई बेकरी की आइटम बेच रहा है, यू टेक देम ऑन इंस्टाग्राम, दे रिसीव द गुड एंड दे आर हैप्पी, राइट? बट यू शुड मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देम, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने लगे ना, तो वो एक भी बार गूगल उठा के सर्च ना करें टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स इन दिल्ली और टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स इन पुणे. उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम सेव्ड हो, bespoke फैक्ट्री, एंड देन नो दैट दे हैव टू ऑर्डर फ्रॉम हियर. Right. So what is, how do you maintain the quality and consistency of your products every time? I think that's where the team ka role plays in. I think the employees, the workforce that we have in manufacturing all the time, they have become skilled enough. We have established systems कि अगर एक बंदा टी शर्ट बना रहा है, उसके बाद फिनिशिंग हो रही है, देन उसके बाद चेकिंग हो रही है, देन पैकिंग के टाइम पे काउंटिंग एंड रीचेकिंग अगेन हो रही है. तो आई थिंक अ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू नीड टू स्केल. अगर आप कोई छोटा सा सामान बेच रहे हो तो आपको तो अपना, आपके हाथ में है कि आपने कैसे बनाना है. यू आर द सोल मैन्युफैक्चरर. जस्ट आई एम स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ एन आर्टिस्ट और अ क्रोशे पर्सन और अ बेकरी, अ बेकर. So, but if you're planning to scale it, तो वो quality ensure करने के लिए you need to have a system, a system that's better than that. Okay. As a young female entrepreneur, what unique experiences have shaped your journey? I think सबसे ज़्यादा मेरी अगर किसी ने हेल्प करी है तो वो हेल्प करी है मेरी इनिशियल फेज, जो मेरा इनिशियल जर्नी थी उसने.
क्योंकि तब ना मेरे पास फैक्ट्री भी नहीं थी, तब मेरे पास कारीगर भी नहीं थे. मैंने एक बंदा पकड़ा था. I talked to him and he used to do my printing work. And कुछ ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं था, खाली 600 पीस का ऑर्डर था. And he was, I think he's the most lethargic person I've ever met. But मेरे पास तब वही ऑप्शन था एक. तो मैं वहाँ गई एंड मैंने उसको बोला कि यार ये 600 पीस है, मुझे कंप्लीट करके देना है 5 दिन में. 5 दिन में वो नहीं कर पाया था. 5th डे सुबह के 2 बज रहे हैं. द ट्रक, द कैरियर जो आ रहा था सामान लेने के लिए, दैट्स इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री. आई मीन हिज वर्क प्लेस, सारी टी शर्ट उसके वर्क इन फ्रंट ऑफ हिज फैक्ट्री. इसको लोड कराओ एंड टी शर्ट्स वर इन एंड द हुडीज वर इन प्रिंटेड. आई हैड टू गो देयर. रात को 2 बजे मैं खुद यूज कर रही हूँ. तो आई थिंक ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, दे हैव मेड मी हम्बल इनफ. दे हैव आल्सो हेल्प्ड मी लर्न द निटी ग्रिटीज ऑफ द बिजनेस. कि अगर कल को मेरे को पता है कि सामने जो कारीगर है वो इतना हल्का सा कुछ ऑफ कर रहा है, बिकॉज आई डन इट माई सेल्फ. आई नो व्हाट इज बीइंग डन रॉन्ग, व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड. सो बेसिकली हमें लीडर बनने से पहले हमेशा ग्राउंड लेवल पे खुद काम करके देखना पड़ेगा. Absolutely. What can be done to encourage women to enter the world of entrepreneurship more? I think number one, the government is doing enough. I didn't take advantage of those schemes or the programs that they have for women entrepreneurs, especially because I didn't have to. मेरे business में it's a customization work. तो मेरे को एडवांस पहले ही आ जाता है. I use that to make the stuff and then I get the remaining amount and then I dispatch. Because once printed, the t-shirt is of no use to me. So मेरे को उसने पैसों की जरूरत नहीं पड़ी या मुझे उतना वो नहीं करा. I think women जो है जहाँ पर वो अटकती है ना बिजनेस स्टार्ट करने में, number 1 is money. And number 2, I think कहीं ना कहीं उनकी reach, उनके resources already कम हो जाते हैं, because it's difficult to talk to people who are in that industry for long. So I think ये तो हर एक इंसान के ऊपर है. आई थिंक जो प्रॉब्लम्स किसी लड़की को हो रही है वो किसी लड़के को भी हो सकती हैं. जिसको बात नहीं करना जमता या जिसके पास उतने फंड्स नहीं है, वो प्रॉब्लम किसी लड़के को भी हो रही है. बट वी आर ग्लैड दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स. उनके पास दे आर गिविंग अस लोन्स एट सच लो इंटरेस्ट रेट्स. अभी जब बजट आया था तो दे हैड इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम्स आल्सो. सो यू शुड I think exploit every opportunity or every advantage that you have. True. So, how can businesses play a role in empowering women, especially in the smaller communities? So we did that, and I am genuinely overwhelmed because of the experience that I've had. I'll give you a video. You can maybe upload it in the podcast. So after those 3 months of training the women, when they started excelling their production, that is when I decided to shoot a video, a small video कि चलो अब सब कुछ establish हो गया है. And the kind of remarks that they gave and the kind of appreciation that they gave, even appreciation more than remarks, more than money, I think their blessings mattered. And वही बात है यार, आप सोसाइटी को कुछ दोगे तो आपको सोसाइटी वापस देगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ ठीक है, बिल्कुल आप काम करो. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिविंग योर कस्टमर व्हाट he or she needs. Number 2, make sure that the people who are working under you are happy with you. Try building a family. True. So, young people nowadays spend a lot of time on social media platforms. How can they utilize that time in learning and growth purposes? भाई ये क्वेश्चन मत पूछो यार, मैं भी बहुत रील्स देखती हूँ. But you are building an empire as well. Yeah. So I think ये तो जेंजी की तो बहुत ही खराब आदत है रील्स देखना. मैं I am myself an addict. I am admitting this. But I think most of my reels are related to what kind of edits I can make for my social media, what kind of reels that I can make. Basically मेरी feed उसी तरीके से उसकी algorithm है कि
उस पे रील्स ही वैसी आती है जो मेरे काम की हो, तो वो रील देख के आई गेट इंस्पायर्ड बाय दैट कि हाँ ऐसी रील वी कैन मेक फ्रॉम बेसबुक फैक्ट्री ऑल्सो. तो आई थिंक रील्स देखना भी टू सम एक्सटेंट बुरा नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर यू नो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. एंड जस्ट मेक श्योर कि यू नो वेयर योर फोकस इज. तो सारा दिन जब आपको पता होगा ना कि यार मेरे को, आपका जुनून है कि मेरे को इसी चीज के लिए काम करना है, मेरे को इसी चीज पे काम करना है, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग अलाइंस इवन इफ इट्स योर एक्टिविटी. If that makes sense. And what kind of impact do you want your work to create beyond just business? I think I want to make it easy for our customers. It's the one sole impact that I want. अगर कल को आपको अपने लिए फादर्स डे के लिए आपको अपने पापा के लिए टी शर्ट प्रिंट करानी है, आप क्या करते हो? What's your first step? गूगल पे सर्च करेंगे नियर मी. आप गूगल पे जाओगे, नियर मी, गूगल पे जाओगे, 10 वेंडर्स मिलेंगे, 10 को फोन करोगे, 10 से रेट लोगे, फिर देखोगे किसकी बात करने पे आपको किस बंदे पे ज्यादा भरोसा हो रहा है. आई वांटेड टू मेक इट इजी फॉर यू. आपको एक टी शर्ट बनवानी है, यू नो दैट यू कैन सिंपली गो ऑन bespoke factories app and order a t-shirt. You will get it in another 2 days. So this is the impact that I want my business to have. That's great. And a piece of advice to the next generation of entrepreneurs. I think I've given a lot over this podcast, but my number one advice still remains: just act upon it. Just act upon it. Just do it. Just do it. प्लानिंग करो, प्लानिंग बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन just make sure that you're not spending more time on planning as it's required, as much it's required. I mean, ठीक है, प्लान क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्ट करना है अपना क्रोशे का बिजनेस, ठीक है, प्लान क्या होगा कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग आर्टिकल्स एंड लेट्स स्टार्ट सेलिंग इट. जब आपके मन में ये प्लान हो गया, यू डिसाइडेड फाइनली कि हाँ मैंने ये बिजनेस करना है, आप उसी टाइम पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, जो आपका प्रीवियस वर्क है अपलोड कर दो. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग करो. यार क्रोशे के तो 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग हैं करने वाले, हाउ इज माई बिजनेस डिफरेंट? तो आप वर्क करो कि यार मैं एक ऐसा क्रिएटिव प्रोडक्ट निकालती हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो बनाओ, उसकी रील्स डाल दो, एड डाल दो, फिर जस्ट वेट फॉर द कस्टमर टू ड्रॉप. तो आई थिंक एग्जीक्यूशन इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी पर्सन हु स्टार्टिंग समथिंग ऑफ देयर ओन. मेरे टाइम पे भी यार गालियां मैंने भी खाई है क्लाइंट से, गलतियां मेरे से भी हुई हैं, लेकिन वो गलतियां से मैंने सीखा. वो गलतियां क्यों हुई? क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट जल्दी करा. मतलब गलतियों से सीख के आज मुझे पता है कि वो एग्जीक्यूशन में वो गलती नहीं होगी जो उस टाइम होती. Right. तो आई थिंक एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस. True. And last, anything that you want to share about your journey and your business or anything? Megha, I think we've almost covered everything, but still, let me think if there's anything left. Okay, so one last thing that I would love to end this podcast on the note that there are absolutely no shortcuts in life, no shortcuts in business, no shortcuts in your corporate journey too. So मेहनत करने से ना पीछे मत हटना कभी. I think that's the best advice that I could give you, क्योंकि जितना काम मैंने करा है, जितना धंधा मैंने करा है, शायद ये चीज मैंने रियलाइज करी है कि मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि उसका रिजल्ट मिलता है. Just do it in the right direction. Do it with all of your heart. Right. So thank you so much, Anahat, for sharing your journey and challenges with us. This might inspire many women entrepreneurs. I'll be happy if it does. I'll be happy अगर ये podcast से कोई एक बंदा भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे और इम्प्रूव करे.